So let us start now. Good. Today I'm going to discuss about recursion and recursive functions. We have already uh, written a program to calculate factorial of a number. For example, this is our definition of factorial. Okay. So you can see factorial of n can be calculated in this manner: n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 up to 3 into 2 into 1. This is the definition of factorial. If you look at the expression of factorial, you can also write it in this fashion. Factorial of n can be expressed in terms of factorial of n minus 1. So you can calculate factorial n by multiplying n with factorial of n minus 1. Okay. For example, if you want to calculate factorial of 5, how can you calculate? Or suppose you want to calculate factorial of 5. 5 factorial equals to, ये कितना आ जाएगा? 5 मल्टीप्लाई विद 4 फैक्टोरियल. आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, बिकॉज जो रेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन बचा हुआ है दिस इज इक्विवेलेंट टू 4 फैक्टोरियल. आप अगर इसे चाहें आप इसे ये भी लिख सकते हैं 4 इंटू 3 into 2 into 1. Okay, so this expression, this is definition of 5 factorial, 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Okay, we can also express this 5 factorial as 5 into this thing, and this whole thing can be written as, जो आप देख रहे हैं 5 into के बाद आपके पास जो कुछ एक्सप्रेशन बचा हुआ है, this expression can be written as 5 into, you can call it as 4 factorial. Okay. आप इसको 4 factorial कह सकते हैं, जो कुछ यहाँ पर इनक्लोज किया हुआ है ना, 4 into 3 into 2 into 1. This is definition of 4 factorial. So we can express our 5 factorial as 5 into 4 factorial. So similarly, we can represent factorial of n as n into factorial of n minus 1. So this kind of expression where we are representing one term in its own terms. We are representing factorial in its own terms. आपने अगले नंबर का फैक्टोरियल पिछले नंबर के फैक्टोरियल से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो such type of expression which may be defined in their own terms like factorial are called recursive expressions. तो आपके इस तरह के expressions जो है ये recursive expressions कहलाते हैं. This is not applicable for all scenarios. Okay, हर calculation में आप इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं. But many of the times you can express your expression or the definition of any particular variable or term in its own terms. जैसे आपने फैक्टोरियल रिप्रेजेंट किया, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट फिबोनाची सीरीज, उसको भी आप इसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो दीज टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड रिकर्सिव एक्सप्रेशंस. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिकर्शन? रिकर्सिव एक्सप्रेशन कोई एक्सप्रेशन जिसको आप उसी एक्सप्रेशन के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो रिकर्सिव एक्सप्रेशन कहलाएगा. फॉर एग्जांपल, फैक्टोरियल कैन बी called as recursive expression because 5 factorial can be represented as 5 into 4 factorial. So we are not calculating the whole expression, we are representing in its lower term. क्योंकि आपके पास इससे पिछला नंबर है, आप उसके टर्म्स में पूरे फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो सिमिलरली वी कैन से factorial of n equals to n into factorial of n minus 1. So we are not calculating factorial of
n by evaluating all the things, but we are just saying factorial of n equals to n into factorial of n minus 1. If factorial of n minus 1 is known, then we can directly calculate factorial of n. So recursive expressions, function can also be defined recursively. जैसे आपने इस expression को recursively define किया है, इसी तरह से आप functions को भी recursively define कर सकते हैं. तो ये जो functions होंगे जो अपने terms में define होंगे, function जो अपने आप को ही call कर रहे हैं, वो इस तरह के functions जो वो आपके recursive functions कहलाएंगे. Is it clear? Recursive expression, वो एक्सप्रेशन जो अपने आप के टर्म्स में ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसे हम रिकर्सिव एक्सप्रेशन कह रहे हैं, और वो फंक्शन जो अपने आप को ही कॉल करता है वो रिकर्सिव फंक्शन कहलाएगा. ठीक है, अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये फंक्शन या ये एक्सप्रेशन अपने आप को कब तक कॉल करता रहेगा. फॉर एग्जांपल इफ यू कंसीडर फैक्टोरियल, ठीक है, आप अगर फैक्टोरियल को देखो तो फैक्टोरियल क्या कर रहा है, ऐसा नहीं है कि आप कहें कि 5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5 into 4 into 3 into 2 into 1, उसके बाद फिर ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाए, फिर ये -1 से मल्टीप्लाई. दिस इज नॉट द केस. We have to stop at some point. Is it clear? कोई भी आप रिकर्सिव एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, उस रिकर्सिव एक्सप्रेशन को आपको कहीं ना कहीं स्टॉप करना है. जहां पर भी आप स्टॉप करेंगे वो आपकी बेस कंडीशन कहलाएगी. Is that clear? कोई भी रिकर्सिव एक्सप्रेशन है या कोई भी रिकर्सिव फंक्शन है, उसमें आप एक ऐसा पॉइंट बनाएंगे जहां पर आपको फर्दर कॉल नहीं करना है, फर्दर आपको एक्सप्रेशन को अपने टर्म्स में डिफाइन नहीं करना है. सो दैट कंडीशन और दैट पॉइंट इज कॉल्ड बेस कंडीशन. Well, is it clear? When dealing with recursion, it must be kept in mind that there should be a condition, there should be a stopping condition which avoids the infinite loop. अगर आप यहाँ पर just consider the factorial, अगर आप यहाँ पर 1 पर स्टॉप ना करें, consider 1 as base condition here. अगर आप 1 के ऊपर स्टॉप नहीं करते हैं, is there any last number on which you can stop? So there is no last number. 1 के बाद 0 आएगा, 0 के बाद आप एक बार और माइनस कर देंगे, you will get -1, then -2, then -3. So you will keep on getting numbers. Negative number में चले जाएंगे, but you will keep on getting a new number. So there is a base condition at which we must stop. तो आपको जब भी रिकर्सिव फंक्शंस डिफाइन करेंगे या रिकर्सिव एक्सप्रेशंस डिफाइन करेंगे, वहां पर आप अपनी एक बेस कंडीशन जरूर बताएंगे. अगर आप उस बेस कंडीशन को बताना भूल जाते हैं, देन दिस विल बिकम एन इनफाइनाइट एक्सप्रेशन और इनफाइनाइट लूप. यू विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट और इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन और द फंक्शन. ठीक है, ना तो आप फंक्शन को इवैल्यूएट कर पाएंगे, ना एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कर पाएंगे अगर आपने कोई बेस कंडीशन नहीं दी. सो यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड कि आपको बेस कंडीशन देना जो है वो जरूरी है. If you forgot to specify the base condition, then you will not be able to stop. आपको किस पॉइंट पे स्टॉप करना है, अगर आप बेस कंडीशन नहीं देते हैं, दिस इज लाइक यू आर ड्राइविंग अ कार विदाउट ब्रेक्स, सो यू विल नॉट बी एबल टू स्टॉप. ठीक है, जब तक कि आप कुछ डैमेज ना कर लें तब तक आप उसे स्टॉप नहीं कर पाएंगे. तो सिमिलर इज द केस हियर कि अगर आप कोई रिकर्सिव फंक्शन बना रहे हैं या रिकर्सिव एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं स्टॉप करना पड़ेगा, और जो पॉइंट जिस पर आप स्टॉप करने का प्लान कर रहे हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड बेस कंडीशन. तो आप इसी को बेस कंडीशन जो है वो कहते हैं. Am I not audible? Someone wrote that I'm not audible. So this is called base condition. जिस कंडीशन पर आप अपने फंक्शन का इवैल्यूएशन फर्दर कॉल रोकेंगे या अपने एक्सप्रेशन की फर्दर कॉल को रोकेंगे, वो कंडीशन आपकी बेस कंडीशन कहलाएगी. जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, फैक्टोरियल के लिए हमें कहाँ पर रुकना है, वी हैव टू स्टॉप एट 1. इसी तरह से हम फिबोनाची की सीरीज को भी डिफाइन कर सकते हैं. फिबोनाची की सीरीज जो है वो आपकी एक सीरीज है जिसको आप मैं यहाँ पर बना रहा हूँ. देखिए 1, इसमें पहला टर्म जो है वो 1 होता है, दूसरा टर्म इट इज ऑल्सो 1, थर्ड टर्म इज 2, देन नेक्स्ट टर्म इज 3, देन नेक्स्ट टर्म इज
5, then it's quite difficult to draw with mouse. This is 8, and then next term is 13, then is 21. You can find some relation between the elements of this series. First element is 1, second is 1, third is 2, fourth is 3, fifth is 5, then next term is 8, then 13, then 21. You can observe that after 2 terms, इसको कभी 1 से भी स्टार्ट करते हैं तो कभी 0 से भी स्टार्ट करते हैं. तो यू मे स्टार्ट इट फ्रॉम 0 आल्सो. 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं. यस, 0 बना ही देता हूँ. Let's start with 0 also. Okay. So if you consider first 2 terms, first term is 0 and second term is 1, and then these 2 terms are called base conditions or base terms or starting terms in the Fibonacci series. ये दोनों टर्म्स आपके बेस कंडीशन या बेस टर्म कहलाएंगे, जहां पर आपको आके स्टॉप कर देना है. और उसके बाद अगर आप किसी टर्म को देखें फ्रॉम थर्ड टर्म onward, you can calculate the term from previous 2 terms. This third term is the sum of first term and second term. Then if you come at fourth term is the sum of third term and second term. Fifth term is the sum of fourth term and third term. ठीक है. तो आप कोई से भी टर्म को कंसीडर करते हैं. मान लिया आप इसको देखें 8, ठीक है. अगर आप इसको कंसीडर करते हैं 8 को, so 8 is equal to sum of previous 2 terms, 3 and 5. इन 2 टर्म्स के सम के बराबर. अगर आप 21 को देखें, 21 is equal to 8 plus 13. 13 को अगर आप देखें, 13 is 5 and 8. So this is another example of recursive expression. ये आपका फिबोनाची सीरीज कहलाती है, जिसमें कोई भी टर्म पिछले 2 टर्म के सम के बराबर. So this is again a recursive expression, or this can be represented with the help of a recursive function. And you see, you are starting the calculation of third term onward. First and second term, these are base terms and they are to be specified. You cannot evaluate them. जो आपके थर्ड टर्म के ऑनवर्ड आपकी टर्म है, थर्ड और थर्ड के बाद जो भी टर्म्स आएंगे, those terms can be calculated from previous 2 terms. But first and second term, these are fixed. इन्हें आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा. And these terms are called base condition for Fibonacci series. जब आप Fibonacci series डिफाइन करेंगे, उसके लिए ये 2 टर्म आपके बेस कंडीशन कहलाएंगे. Is that clear? और आप इन एक्सप्रेशंस को लिखने के लिए जो फंक्शंस बनाएंगे, उन फंक्शन में भी आपको इसी तरह की डेफिनेशन देनी पड़ेगी. फंक्शन विल कॉल इटसेल्फ, देन दैट फंक्शन विल बी नोन एज रिकर्सिव फंक्शन. इज दैट क्लियर? कोई भी फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन हम किसको बोलेंगे? वो फंक्शन जो अपने आप को कॉल कर रहा है. किसको कॉल कर रहा है? इट्स कॉलिंग इटसेल्फ. द फंक्शन इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन इफ इट कॉल्स इटसेल्फ. ये फंक्शन जो है अपने आप को कॉल कर रहा है, then we are calling it a recursive function. कब तक कॉल कर रहा है, उसके लिए we have to specify a base condition. Okay. एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको. देखो मैंने जो सीरीज दी थी फिबोनाची सीरीज, इट्स कॉल्ड फिबोनाची सीरीज. We can calculate any term of the Fibonacci series. If you want to print, suppose first 10 terms of the Fibonacci series, so we can calculate. So I have written a function here. Function. This is function prototype, and this prototype has been specified or written in main function. So this is local function of main. आप इस fib function को main function के बाहर किसी दूसरे function में कॉल नहीं कर पाएंगे, except itself. तो ये आपका fib function है. इसका प्रोटोटाइप हो गया. इसकी डेफिनेशन देखिए. इस फंक्शन का काम क्या है कि ये आपको
अगर आप इसे नंबर ऑफ टर्म बताते हैं, if you specify n, then it will return the nth term of the Fibonacci series. Okay, so recursive definition of this function is this much small. आप देखें अगर बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है, इसमें आपको क्या करना है, अगर n की वैल्यू 0 है, if n equals to 0 और n equals to 1 या 1 है, these are our base conditions as I specified in previous slide, that these are our base conditions. So you can see here that if value of n equals to 0 or value of n equals to 1, then we should return as it is, because first term is 0. Okay, this from first term करें, if you specify n as 0, then it will return 0. अगर आप फिब 0 निकालना चाहेंगे तो ये 0 रिटर्न करेगा, अगर आप फिब 1 रिटर्न करें, फिब 1 की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये 1 रिटर्न करेगा. इसके बाद अगर आप फिब 2 पास करते हैं, इट मींस इफ n is not 0 and not 1, then it will return fib of n minus 1 plus fib of n minus 2. So it means this will call recursively. This call is called recursive call. आप देखें यहाँ पर ये हमारा फिब फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है, क्योंकि इसमें आर्गुमेंट आप देखें वो आर्गुमेंट चेंज हो गए. जो आपका मेन फंक्शन था, जो मेन डेफिनेशन, उसमें आपने n पास किया है, और जब इस फंक्शन के अंदर आपने इस फंक्शन को दोबारा से कॉल किया, अपने आप को कॉल किया है, तो इसमें n के बजाय क्या पास किया है, n-1 पास किया एक बार, और एक बार n-2 पास किया है. सो दिस फंक्शन विल कैलकुलेट फिब ऑफ n. कोई भी n की वैल्यू हो सकती है. अगर n की वैल्यू 0 होगी देन इट विल रिटर्न n. अगर इसकी वैल्यू 1 होगी देन इट विल रिटर्न 1. अगर n की वैल्यू 0 या 1 से ज्यादा है देन इट विल रिटर्न fib of n-1 plus fib of n-2. Is that clear? So this is the definition of our recursive function. So we will call this fib function as recursive function. ये हमारा fib function जो है ये recursive function कहलाएगा, because it is calling itself. You can see the recursion here. The fib is calling. This is the definition of fib. Okay. You are defining the fib function here, and this is the call, function call. आप fib के अंदर fib function को ही call कर रहे हैं. That's why this function will be known as a recursive function. Okay. This is our main function. Here we have defined the prototype. Then we have defined 3 variables x, y, and I. This is for clearing the screen in Turbo C. अगर आप Turbo C में काम नहीं कर रहे, then you can skip this. If you are not working in Turbo C, then you can remove these 2 instructions, clear screen and get CH. आप इन दोनों instructions को हटा सकते हैं. So we have to specify up to 10 terms. So this will be controlled with the help of a while loop. I equals to 0 आपने already initialize कर रखा है. Now we have to specify the condition while I is less than 10. So it will go up to 9. Starting from 0 up to 9, so it will print 10 terms. And here we are calculating fib I. Fib I will calculate ith term of the Fibonacci series. Okay. We are starting I from 0. We are calling it 0th term is 0, first term is 1, second term is 1, third term is 2, and so on. Okay. So we are calculating the ith term of this Fibonacci series, and the value returned by the function is stored in the variable y. So हमने variable y में store किया है, and then y has been printed and I has been incremented. Y को आपने print किया है और I को increment कर दिया. Okay, is it clear? You can run this program, so it will generate. आप यहाँ पर देखें, मैंने जो ये सीरीज देख रहे हैं, इसमें आउटपुट जनरेट हुआ है, कॉमा दिखा रहा है. कॉमा किस वजह से दिखा रहा है कि मैंने यहाँ %d के बाद भी कॉमा लगाया. दिस कॉमा इज जस्ट टू प्रिंट अ कॉमा आफ्टर ईच नंबर. अगर आप यहाँ पर देखें, ये जो कॉमा बना हुआ है मैंने यहाँ पर लिखा है, ये डबल कोट से पहले वाला कॉमा है, ये आपका पार्ट ऑफ सिंटैक्स नहीं है. दिस हैज बीन इंसर्टेड to make numbers separate. ठीक है, 1, 2, 0, 1, 1, 2, 3, 5. So to put comma after each number, I have put the comma before double quote. So this is just in output. This comma is part of syntax. जो second comma आप देख रहे हैं डबल कोट के बाद, ये आपकी सिंटैक्स का पार्ट है, और जो डबल कोट के पहले दिख रहे हैं ये सिर्फ आपके आउटपुट को सेपरेट करने के लिए स्पेसिफाई किया गया है. अगर आप कॉमा नहीं देते हैं तो आप यहाँ पर स्पेस लगा सकते हैं, डैश लगा सकते हैं, कोई भी आप मार्कर लगा सकते हैं जिससे आप अलग अलग नंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकें. ओके,
So this is our recursive function definition for calculating or for printing the Fibonacci series. यहाँ पे आपको सिर्फ Fibonacci series को print करने के लिए क्या आ गया? You are evaluating each term of the Fibonacci series and printing the term. You may be asked to modify this program so that you can calculate the sum of n Fibonacci numbers. आप Fibonacci series print करें और जितने numbers को आप print करें उनका sum भी अगर आपको calculate करना है, so in that case you will need a variable here. आपको एक वेरिएबल की जरूरत और पड़ेगी. यू कैन टेक एस इक्वल्स टू, आप वेरिएबल और ले सकते हैं. एस इक्वल्स टू 0 पे आपको इनिशियलाइज करना होगा अगर आप सम भी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं. एंड यू कैन राइट आफ्टर कैलकुलेटिंग वाई, यू कैन राइट एस इक्वल्स टू एस प्लस वाई. आप ये इंस्ट्रक्शन और लिख सकते हैं अगर आपको कहा जाता है कि आपको सम कैलकुलेट करना है इस फिबोनाची सीरीज के जो भी टर्म्स आपने प्रिंट की, जो सीरीज प्रिंट की उस सीरीज का सम भी कैलकुलेट करना है. बट रिमेंबर यू आर कैलकुलेटिंग सम हियर, यू शुड नॉट प्रिंट द सम विद इन द लूप, बिकॉज अगर आप लूप के अंदर सम प्रिंट करेंगे इट विल बी पार्शियल सम ईच टाइम. पहली बार में 0 आएगी सम की वैल्यू, दूसरी बार में 1 आएगी, तीसरी बार में 2 आएगी, फिर उसके बाद 4 आएगी, 7 आएगी. That you don't want. We want to print the total of all the terms in the Fibonacci series जो आपने print की. So you should print the value of s after the closing of loop. So you can print it here. Printf से आप इस तरह से लिख सकते हैं. Sum equals to percent d, क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे और उसके बाद आप एस की वैल्यू प्रिंट कर देंगे. So this is the chain required to print the sum of series also. अगर आप इस सीरीज का सम भी प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको एक एस डिक्लेयर करना पड़ेगा. रिमेंबर मैंने यहाँ डबल कोट के बाद कॉमा लगा के लिखा है, और ये सॉरी सेमीकोलन के बाद, ये सेमीकोलन यहाँ ना आकर यहाँ से हटेगा ये सेमीकोलन, और ये सेमीकोलन आपका यहाँ आ जाएगा एस के बाद. अब बाकी y को कैलकुलेट करने के बाद फिर आप एस में ऐड करेंगे. अगर आप y से पहले ऐड कर देंगे देन यू विल गेट द इनकरेक्ट आंसर. और लूप में प्रिंट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ व्हाइल. इज इट क्लियर? और एक चीज इसमें कमी, दिस इज फंक्शन मेन रिटर्निंग इंट, सो वी शुड यूज अ रिटर्न स्टेटमेंट हियर. गेट ch से पहले कर ली, गेट ch के बाद कर दी, गेट ch की बल्कि बात करेंगे. रिटर्न 0. ये आपका रिकर्सिव फंक्शन हो गया. जो मैंने आपको चेंजेस बताए वो चेंजेस आपके यहाँ पर हो गए. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. इज इट क्लियर? रिकर्सिव फंक्शंस एंड रिकर्शन, जो आपका प्रोसेस है उसको रिकर्शन कहते हैं, और इस प्रोसेस को फंक्शंस. ओके, और रिकर्सिव फंक्शंस आप जो हैं तभी लिख सकते हैं जब आपका एक्सप्रेशन रिकर्सिव. अगर आपका रिकर्सिव एक्सप्रेशन नहीं, फॉर एग्जांपल इफ यू आर कैलकुलेटिंग सम ऑफ 2 नंबर्स, तो इसके लिए आप जो है रिकर्सिव फंक्शन ही बना सकते हैं कि आपको 2 नंबर का सम चाहिए. आप सिर्फ तब इस चीज को यूज करेंगे रिकर्शन को जब आपका एक्सप्रेशन जो है वो अपने आप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, अपने आप में एक्सप्रेस किया जा सकता है. ओके, उसके बाद हम फंक्शन कॉल को लेंगे, लेकिन पहले हम इसको देख लेते हैं एक बार. अभी क्या था आपको रिकर्शन. लेट अस राइट सम प्रोग्राम. कंट्रोल एस, डॉट सी, नाम हमने रखा इसका रिकर्शन डॉट सी हैश इंक्लूड stdio.out
H फैक्टोरियल का बताता हूँ, फैक्टोरियल ज़्यादा आसान है, कैन इजीली अंडरस्टैंड, बस साइज बड़ा करते हैं। मैं क्योंकि और कहीं हमको फंक्शन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए इसका प्रोटोटाइप यहीं पर मेंशन कर दे रहा हूँ। इंट फैक्ट, तो फंक्शन का नाम हो गया। आर्गुमेंट में भी आपको कुछ चाहिए, यू नीड वन आर्गुमेंट ऑफ इंटीजर टाइप, से सपोज नेम ऑफ द आर्गुमेंट इज एन। आप चाहें तो यहाँ से इस एन को स्किप कर सकते हैं, दिस एन इज नॉट नीडेड, दिस इज जस्ट अ प्लेस होल्डर। आपका फंक्शन प्रोटोटाइप जो है सिर्फ इतना काफी। int, this is the return type of function. Fact, this is the name of the function. Int, this is representing one argument. If you need more than one argument, then you should specify the data type of another argument after comma. यहाँ पर हमें एक ही आर्गुमेंट की जरूरत है, इतना काफी है। Take this control C, come here, control V, and define our function here. So we shall define if n लेस देन 0, अगर आपके पास n लेस देन 0 है, मे बी कोई आपको लेस देन 0 दे सकता है, देन यू शुड रिटर्न -1। आपका फंक्शन है कोलैप्स नहीं करना चाहिए, इसे एग्जिट नहीं होना चाहिए अननोन मैनर में। अगर आपको इसे इनवैलिड वैल्यू सप्लाई करते हैं, अगर आप इसे माइनस में कोई वैल्यू सप्लाई करते हैं, तो आपका फंक्शन जो है वो फैक्टोरियल आपका सब पॉजिटिव वैल्यूज है। ओके, सो इट विल रिटर्न -1 if n equals to 0 और n equals to 1। अगर आप n की वैल्यू 0 सप्लाई करते हैं या n की वैल्यू 1 सप्लाई करते हैं, then factorial will, this is our base condition, return 1। factorial of 0 is 1 and factorial of 1 is 1, so in these two cases we will return 1। if n is less than 0 we will return -1, if n is 0 or 1 then we will return 1। we need not use else statement because if the condition is true with the if statement, then we'll return, and if it is false, then we will definitely come to the next statement. So we can write directly in return what we want to return. We want to return अभी देखिए ये तो प्रोटोटाइप है, यहाँ पर आपको आर्गुमेंट की जरूरत नहीं, बट वे इन द डेफिनेशन वी आर यूजिंग n, सो वी नीड दिस वेरिएबल n। तो क्या रिटर्न कर सकते हैं रिकर्सिव डेफिनेशन फंक्शन की, क्या है कि अगर n की वैल्यू 0 है या 1 है तब तो आप 1 रिटर्न करेंगे, अगर इसके अलावा कुछ है देन वी विल रिटर्न n इनटू फैक्टोरियल ऑफ n - 1, and that's it. This is the recursive definition. This is recursive definition of factorial. We have already written a recursive a function to calculate factorial of a number without using any recursion. Okay, so this is a recursive definition. बल्कि मैं आपको वो भी लिख देता हूँ, ये आपकी recursive definition है, so we can call it as recursive factorial rfact. Okay. And int we are calling simply fact for non-recursive version of the factorial. So I'm going to rfact function अगर आप यूज करें then you should specify two prototypes, एक fact है और एक rfact, recursive और एक non-recursive।
रिकर्सिव आप देख रहे हैं देयर आर ओनली 3 लाइंस, ये भी लाइन अगर आप नहीं लिखते तब भी ये जो आप फर्स्ट लाइन देखें, दिस इज जस्ट टू हैंडल एनी इनवैलिड इनपुट, इनवैलिड आर्गुमेंट अगर आप इससे पास करते हैं तब भी आपका फंक्शन जो है वो नोन मैनर में बिहेव करेगा। और अगर आप 0 और 1 देते हैं तो ये 1 रिटर्न करेगा। अगर आप जो है इसको इसके अलावा कोई और वैल्यू देते हैं, कोई पॉजिटिव एन वैल्यू सप्लाई करते हैं, देन इट विल रिटर्न n into factorial of n minus 1. Okay, and this is non-recursive version of the fact. Hence, say we are calculating f equals to 1 while n is greater than 1, तब तक n की वैल्यू आपकी 1 से बड़ी है, तब तक हम क्या करें इसके लिए, we'll calculate f equals to f into n and n minus 1 is. You can write factorial function in different ways. आप जो है इंक्रीज करते हुए भी जा सकते हैं। मैंने इस ऑर्डर में लिखा कि विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग f by, say you are calculating factorial of n, so we'll start multiplying with say if you have passed 5, then it will start from 5, then it will multiply with 4, then it will multiply with 3, then 2, and then it will stop. क्योंकि 1 इसमें ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो चुका है और 1 आप नहीं भी लेते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता 1 से मल्टीप्लाई करने का। सो विल स्टॉप एट 2। जैसे इसकी वैल्यू n की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद हम इसको स्टॉप कर देंगे। जब तक n से बड़ा 1 से बड़ा तब तक हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। So after exiting from the loop, we'll return and f. आप यहाँ पर f रिटर्न कर देंगे। और जो चीज़ आपने यहाँ पर लिखी है कि इफ, बल्कि आप डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर ये स्टेटमेंट, कंट्रोल सी ये स्टेटमेंट को जरूरत है इसकी। So you can see the recursive version of the definition, function definition of factorial and non-recursive version. This is our recursive, non-recursive definition. Okay. यहाँ पर हमने फंक्शन फैक्ट को अपने आप को कॉल नहीं किया, फैक्ट फंक्शन ने अपने आप को कहीं पर भी कॉल नहीं किया। यू आर कैलकुलेटिंग फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ एनी नंबर। आपको अगर फैक्टोरियल 5 चाहिए तो आप लूप लगाकर यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। आप अपने आप फंक्शन को एक फैक्टोरियल को दूसरे फैक्टोरियल के टर्म्स में कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप पूरा फैक्टोरियल एक बार में ही कैलकुलेट कर रहे हैं। जबकि रिकर्सिव फैक्टोरियल के डेफिनेशन में call it non-recursive definition. ये आपकी non-recursive definition of factorial function है। Is it clear? Recursive definition आपकी कब कहलाएगी? उसमें R fact लगाएंगे। Recursive में recursive R fact function है, recursive factorial का नाम। तो हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, that's why this is called recursive function. Okay. तो recursive function में हम इसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। इसके बाद ये नॉन रिकर्सिव वर्जन है, तो इसमें फैक्टोरियल को अपने आप को कॉल करने की जरूरत नहीं। तो आप इनके रिजल्ट्स देख सकते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल x5 को आप चाहें तो इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, इनिशियलाइज ही कर देता हूँ, वरना आप ऐसे स्कैन करवा सकते हैं x की वैल्यू को। y इक्वल्स टू, पहले हमने नॉन रिकर्सिव वर्जन को कॉल किया, फैक्ट ऑफ x का फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा, y में स्टोर होगा, y की वैल्यू हम प्रिंट करा देते हैं, printf factorial of %b is equals to, इसका फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हैं आप, x का फैक्टोरियल कर रहे हैं, कितना आ रहा है, y आ रहा है। Clear? Now we can again use the same thing, control C, control V. Now we are going to use recursive definition of fact. Message will remain same. आप यहाँ पे न्यू लाइन और लगा ली, न्यू लाइन, save it and run it.
This is the output is same in both the cases. Factorial of 5 is 120, factorial of 5 is 120. But first function is non-recursive definition, while the second call is recursive definition. This is called function call. यहाँ पर हमने function को call किया है. This is non-recursive function and this is recursive function. rfact को आपका जो है वो recursive function call है और ये non-recursive function call. Is it clear? So you can see factorial function in recursive fashion or non-recursive fashion. But this is possible कि आप किसी भी recursive expression को non-recursive form में लिख सकते हैं. But this is not possible कि जो non-recursive expression है उसको आप recursion वहाँ पर use कर सकें. Okay. तो जहाँ पर भी आप recursion use कर रहे हैं वहाँ पर ये चीज़ possible है कि आप इसको non-recursive function के form में लिख सकते हैं. But जहाँ पर आपको जो आपका expression non-recursive expression है वहाँ पर आप recursion use नहीं कर सकते. So this is a recursive function for calculating factorial. इसी तरह से आप suppose Fibonacci series के लिए लिखना चाह रहे हैं, बल्कि मैं एक और बना लूँ. दो फंक्शंस इसको भी आप रिकर्सिव नॉन रिकर्सिव दोनों तरीके से लिख सकते हैं. मैं आपको रिकर्सिव बता रहा हूँ. फिबोनाची सीरीज ये आप इसकी डेफिनेशन पे जाइए. कंट्रोल सी कंट्रोल आपको आर्गुमेंट भी चाहिए एंड आप फिर एंड कैलकुलेट करने वाले हैं. If someone provides value of n less than 0 and less than 0, you should handle all these situations. Then program should return -1. It will return -1. अगर आप इसे 0 से कम नंबर देते हैं, कोई भी नंबर देते हैं तो इससे हैंडल करना चाहिए. It should return -1. If n equals to 0 or n equals to 1. अगर n की वैल्यू 0 है या 1 है then it should return n itself. 0 तो 0 रिटर्न कर देगा और 1 है then it will return 1. Else अगर इसके अलावा कोई केस है, because of this return statement we need not use else statement, otherwise we have to use else statement, because if this condition is true then we will return from the function, so no other statement will be executed, and if this condition is false then we'll definitely go to the next statement. So that's why I am not using else statement here. पर ये इसमें अब हमें क्या करना है, रिटर्न. This is the advantage of writing recursive definitions. Recursive definition में आपको क्या करना है, if n is greater than 1, so it will return fib of n minus 1 plus fib of n minus 2 and nothing else. This is recursive definition of Fibonacci series. So this is our definition of recursive definition of Fibonacci series. I am writing it here. Recursive
फिबोनाची सीरीज के लिए हमारी रिकर्सिव डेफिनेशन है. व्हाट दिस फंक्शन विल डू, दिस फंक्शन विल इवैल्यूएट nth टर्म ऑफ द सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम 0. n की वैल्यू आप अगर 0 देते हैं इट विल रिटर्न 0, अगर आप 1 देते हैं इट विल रिटर्न 1, अगर आप 2 देते हैं तो ये इवैल्यूएट करके लाएगा, अगर आप 2 देंगे तो ये यहाँ से कैलकुलेट करके लेके आएगा. तो आपका फिबोनाची सीरीज ये रिकर्सिव डेफिनेशन. यहाँ पर हम n की कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं. या सपोज हम इसको प्रिंट कराना चाह रहे हैं. ओके, मैं आपको बताया था से int I equals to 0 while I less than 10. Y equals to I. आपने I टर्म कैलकुलेट किया, विल प्रिंट दिस टर्म printf %d. ठीक है, अगर आप स्पेस चाहते हैं तो आप स्पेस प्रिंट कर सकते हैं. आप भी कॉमा नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा. और क्या प्रिंट करना है आपको, y की वैल्यू प्रिंट करनी है. दिस विल प्रिंट द होल सीरीज. रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न 0. सेव इट, कंपाइल इट. देखिए इसमें कहीं गलती रह गई है अपने फॉर लूप का. दिस इज happens when we are writing program in a wrong manner. What is the mistake? Can someone tell? देखिए यहाँ पर आ रहा है finished with 0 error and 0 warning. कोई इसमें एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं. कंपाइलर के हिसाब से there is no error. It is actually a logical error. The error is that our I was initialized at 0 and it is still 0. It has not been incremented. We forgot to increment the value of I. This is the mistake. Run it again. You can see the output has 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 and 34. यहाँ पर आप देखें, अगर दोबारा से रन करता हूँ, there is no comma after any term. अगर आप यहाँ पर स्पेस ना देते, ये स्पेस जो मैंने यहाँ पर दे रखा है, if you remove this space, what will happen? Control is F9. Then you will not be able to identify what are the value of each term. आप देख सकते हैं बहुत सारे टर्म्स है, लेकिन किस टर्म की क्या वैल्यू है. यू कैन से फर्स्ट टर्म इज 0, सेकंड टर्म इज 112 और सेकंड टर्म इज 11 एंड थर्ड टर्म इज 23 एंड देन 58. इस तरह से आप सोच सकते हैं. दैट्स व्हाई वी नीड at least either a space or a comma. If you put comma, then the output will look like this. Comma will be placed after each term. So this is better. You should be able to put the comma or space, whatever you are asked. So this comma, the first comma यहाँ पर हमने लगाया हुआ है, कि पहला comma जो है वो हमारे output की formatting के लिए use किया गया है. It has nothing to do with the syntax of the print statement. But the second comma, this is part of the syntax of print statements. डबल कोट के बाद आपको कॉमा लगाना है, फिर आपको दूसरा आर्गुमेंट स्पेसिफाई करना है. इज दैट क्लियर? अब मैंने आपसे कहा था कि आपको अगर मान लीजिए इसमें सम कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, सो यू कैन डिक्लेयर अनदर वेरिएबल एज इनिशियलाइज इट 0. जो आपने टर्म कैलकुलेट किया एज, इसको आप लिख सकते हैं एस इक्वल्स टू एस प्लस वाई. एस में आपने वाई को ऐड किया और आप यहाँ पर प्रिंट नहीं करेंगे. लूप के अंदर अगर आप प्रिंट करेंगे यू विल गेट पार्शियल सम. तो आपको लूप खत्म होने के बाद यहाँ पर प्रिंट करना है सम ऑफ %d टर्म्स ऑफ series is equal to %d. कितने टर्म्स आपने लिए? i के बराबर टर्म्स लिए. i टर्म्स का सम है और सम की वैल्यू क्या है? s. सेव इट, कंपाइल एंड रन.
इसमें एक आप यहाँ पर न्यू लाइन और लगाइए ताकि आपका आउटपुट जो अगली लाइन में आए। $9 दिस इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। पहले आपके ऊपर सीरीज आ रही है, नीचे लिखा रहा है द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ फिबोनाची सीरीज इज 88। इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। शुरू के टर्म्स तो छोटे हैं, बाद में टर्म आपके बड़े हो गए। लास्ट के दो टर्म्स का 55 है, इसके पहले का जो है मेरे ख्याल से 33 होगा। That's why it is 88. I hope this output is correct. So in this fashion, you can calculate Fibonacci series. Sum of Fibonacci series आप प्रिंट भी कर सकते हैं। आपको अगर सिर्फ प्रिंट करने के लिए कहा जाए तो आपको सम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सम कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो आपको प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको दोनों चीजें करनी है तो आप दोनों भी कर सकते हैं। एज इज द क्वेश्चन, आप उसके हिसाब से अपना आउटपुट जो है जनरेट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट रिकर्शन, रिकर्सिव फंक्शंस, रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस, बेस कंडीशंस और बेस वैल्यूज, and how we can write our recursive definitions. Okay. Now come to the next topic. This is called function types of function call. We have already called functions. Okay. When we call, when we write the function prototype or function definition, the arguments specified in function definition or function prototype are called formal arguments. आपको पहले ही बता चुका हूं मैं, वो आपके फॉर्मल आर्गुमेंट्स कहलाते हैं। और जब आप फंक्शन कॉल करते हैं देन दीज आर्गुमेंट्स आर कॉल्ड एक्चुअल आर्गुमेंट्स। ओके, देख सकते हैं यहाँ पर एक्चुअल आर्गुमेंट जो एक्चुअली यूज किए जा रहे हैं वो एक्चुअल आर्गुमेंट्स कहलाते हैं, और जो सिर्फ फॉर्मली डेफिनेशन में यूज किए जा रहे हैं वो आपके फॉर्मल आर्गुमेंट्स कहलाते हैं। या आप इन फॉर्मल पैरामीटर्स को, इन पैरामीटर्स को पास करते हैं फंक्शन में, तो ये आपके पास दो तरह से पास हो सकता है। इधर बाय वैल्यू, आप जो किसी वेरिएबल की वैल्यू पास करते हैं, या किसी वेरिएबल का, ठीक है, आपने कहीं कहीं आपको एड्रेस की जरूरत पड़ती है तो आप जो है आर्गुमेंट्स की वैल्यू बाय वैल्यू पास कर सकते हैं, सिर्फ वैल्यू भेज सकते हैं, या आप जो आपके पास आर्गुमेंट्स हैं उनका एड्रेस भेज सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन these categories we can categorize our functions or function call also. The function argument when passed with value are called argument passing by value. अगर आप वैल्यू पास कर रहे हैं तो फंक्शन कॉल को हम कहते हैं आर्गुमेंट पासिंग बाय वैल्यू। ओके, जब आप वैल्यू पास करेंगे तो आपकी कहलाएगी आर्गुमेंट पासिंग बाय वैल्यू, और अगर आप आर्गुमेंट को एड्रेस के साथ पास करते हैं देन दिस विल बी नोन एज आर्गुमेंट पासिंग बाय एड्रेस। इज इट क्लियर? अगर आप एड्रेस पास कर रहे हैं तो ये आर्गुमेंट कहलाएगा आर्गुमेंट बाय एड्रेस, और अगर आप आर्गुमेंट की वैल्यू पास कर रहे हैं तो आर्गुमेंट बाय वैल्यू। पास तो आप कर ही रहे आर्गुमेंट, सो आर्गुमेंट पास बाय वैल्यू और बाय एड्रेस। The words argument and parameters are used interchangeably. तो कहीं पर आप पैरामीटर भी कहते हैं आर्गुमेंट, एक्चुअल पैरामीटर्स और एक्चुअल आर्गुमेंट्स, या फॉर्मल पैरामीटर्स और फॉर्मल आर्गुमेंट्स। तो आप पैरामीटर भी कह सकते हैं आर्गुमेंट पासिंग या पैरामीटर पासिंग बाय वैल्यू और बाय एड्रेस। तो पैरामीटर पासिंग बाय वैल्यू और फंक्शन कॉल बाय वैल्यू, फंक्शन कॉल भी कह सकते हैं बिकॉज यू आर कॉलिंग द फंक्शन। आप इसमें आर्गुमेंट कैसे पास कर रहे हैं? अगर आप बाय वैल्यू आर्गुमेंट पास कर रहे हैं तो आपकी फंक्शन कॉल कहलाएगी फंक्शन कॉल बाय वैल्यू, अगर आपने फंक्शन में वैल्यूज पास करेंगे। तो अभी तक हमने जितने भी फंक्शंस बनाए, यूजर डिफाइंड फंक्शंस आपने जो भी देखे हैं, इन ऑल दोस फंक्शंस वी वर पासिंग द वैल्यूज ऑफ आवर वेरिएबल्स। सो all these functions were in the category of function call by value, but sometimes we need to pass our address of the argument. Okay, when function is called by value, the actual parameters are copied into formal parameter. This is very important, just remember this. जब आप by value pass करते हैं तब क्या होता है? When we are passing argument by value or we are calling a function by value, what happens? The actual arguments are copied into formal arguments. आप अगर फंक्शन की डेफिनेशन देखें, क्या आप यहाँ पर अगर देखें, इसमें ये फंक्शन कॉल है, दिस इज कॉल्ड फंक्शन कॉल। आपने यहाँ पर एक फंक्शन इस प्राइम को कॉल किया हुआ है और इसमें ये आपका एक्चुअल आर्गुमेंट है। दिस एक्चुअल आर्गुमेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस प्रोग्राम में बता रहा हूँ मैं आपको,
ये जो आपका एक्चुअल आर्गुमेंट ए है, ये आपका जब फंक्शन कॉल होती है, सो व्हाट विल हैपन, दिस ए विल बी कॉपीड इनटू दिस वेरिएबल एक्स, ये आपका एक्स में कॉपी हो जाएगा। जब आप फंक्शन इस प्राइम को कॉल करेंगे, व्हाट विल हैपन, दिस ए विल बी कॉपीड इनटू एक्स, सो इट विल टेक प्लेस लाइक दिस, एक्स इक्वल्स टू, इस तरह से हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू ए, आपने ए की वैल्यू एक्स में स्टोर कर दी। नाउ वी आर यूजिंग एक्स इन द फंक्शन। अब आप इस x को, आप इस x को इस फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं। ओके, सो वट एवर यू डू ऑन x, दिस विल रिमेन टू द x only. When we are passing argument by value, it's like changing in the copy of the actual arguments. जो आपके पास actual arguments हैं, आप उस argument की copy में, so this is like you can consider a scenario where you are having your mark sheet and you cannot write anything or you cannot scribble on your mark sheet. अगर आपको मार्क शीट मिली तो ऐसा नहीं कि आप मार्क शीट के ऊपर कुछ भी लिखते हैं, अपनी पेंसिल चला दें, पेन से उसमें सर्किल कर दें। इफ यू डू दिस देन योर मार्क शीट विल बी कॉल्ड फोल्ड और चेंज, ठीक है, तो आपकी इनवैलिड मार्क शीट हो जाएगी। बट इफ यू टेक योर ओरिजिनल मार्क शीट एंड मेक अ कॉपी और गेट अ जीरोक्स, ठीक है, आपने एक मार्क शीट ली, उस मार्क शीट की एक जीरोक्स कॉपी कराई, उसके बाद आप उसमें अगर कोई चेंजेस करते हैं तो इट डजंट मैटर, आपकी ओरिजिनल मार्क शीट इट विल रिमेन सेम। Same thing happens here when we pass argument by value, then actual arguments are copied into formal arguments. So whatever change you make, those changes are made to the copy of the actual argument, not the actual argument. So actual argument remain unchanged. Is that clear? Make it clear. जब आप actual argument pass करते हैं किसी function call में, तो function call में by value जब आप call कर रहे हैं, so actual argument modify नहीं होगा, actual argument की जो copy आपने create की वो copy modify होगी. So actual argument will remain unchanged. Remember this. But in some cases, अभी तक आपने जिसमें देखा मैं actual argument को modify करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, so call by value is fine. But in some cases, we need to modify actual argument. But when we are calling by value, then actual arguments are not modified. But we want to modify our actual argument. So to solve this problem, we can pass the address of the actual argument. Instead of passing the value of our actual argument, we can pass the address of actual argument. Since we are passing address, so this call will be known as call by address. Call by address. अगर आप instead of passing by value, if we pass the address of the actual variable, then this call will be known as call by address. And in this case, instead of passing value of actual argument, the address of these arguments are passed. Okay, and since we know the address of variable, okay, pointers already we have studied pointers, so with the help of pointer आपको address मिल गया किसी particular variable का, so we can indirectly modify the value of actual argument with the help of the pointer. आप address किस में store करते हैं? Pointers में store करते हैं। Address of all the variables are stored in some kind of pointer. So when we are passing the address of the variables, we need pointers of the particular data type. Since we are having pointers, so we can modify the actual parameters indirectly with the help of the pointers. So when we want to modify actual argument, we can call function with the help of address of the actual variables instead of calling by value. देखिए ये आपका एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय एड्रेस। सपोज देयर इज अ फंक्शन इंक्रीमेंट, इन दिस इंक्रीमेंट फंक्शन आई एम इंक्रीमेंटिंग दी पास्ड पैरामीटर, जो भी आपने पैरामीटर या आर्गुमेंट पास किया उसको हम इंक्रीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, द नेम ऑफ फंक्शन इज incr एंड वी आर मॉडिफाइंग और इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट पास टू द फंक्शन। ओके, एंड देयर इज अनदर फंक्शन कॉल्ड x increment, x incr, and in this function we are instead of passing by value we are passing by address. So to hold the address of integer we need integer pointer, तो इसके आर्गुमेंट का टाइप क्या हो गया? integer pointer. Okay. अब आप इसमें क्या पास करेंगे? इसमें वैल्यू पास करेंगे। दिस इज द फंक्शन कॉल बाय वैल्यू। यहाँ पर जब आप ये कॉल बाय वैल्यू करेंगे, so what will happen? This value of a will be copied into a
into I, and only I will be modified. Remember, we are passing actual argument A, but we are modifying the local copy of the variable, and this is I. So only I will be modified, but A ऑपरेटर, तो आपने पहले इसे डी रेफरेंस किया स्टार आईपी और उसके बाद इसको इंक्रीमेंट कर दिया. सो द वैल्यू ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट विल बी मॉडिफाइड विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर. तो हमने यहाँ पर पॉइंटर के थ्रू जो एक्चुअल आर्गुमेंट थे उसको मॉडिफाई कर दिया है. सो आफ्टर first call to INCR, the A will remain unaffected since A was 5 here. आप चेंज करने से पहले प्रिंट करेंगे, इट विल रिमेन 5, 5 आएगी वैल्यू. उसके बाद आपने INCR फंक्शन को कॉल किया. आपको देखने में ऐसा लग सकता है कि आप A को इंक्रीमेंट कर रहे हैं. एक्चुअली यू आर नॉट इंक्रीमेंटिंग A, you are incrementing I, and the value of A has been copied into I. So only I will be incremented, A will remain same. So after this increment function, the value of A will be printed as 5 only, not 6. But after call to xincr, here we are passing the address of A. So this function xincr is having the address of the variable. इसके पास इसका address है, and with the help of pointer declared in the xincr function, this function is able to modify the contents of the address. जो भी एड्रेस है उस कंटेंट को ये मॉडिफाई कर सकता है. सो दिस फंक्शन इज एबल टू मॉडिफाई द वैल्यू. सो आफ्टर कॉल टू दिस फंक्शन x विल बी मॉडिफाइड टू 6. ओके, तो अगर आप इस कॉल के बाद प्रिंट करेंगे x की वैल्यू, इट विल बी 6. इसको भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ. पास बाई वैल्यू नाम रखा है, मैं इसमें दोनों ही चीजें करता हूँ. ठीक है, हैश इंक्लूड stdio dot h name. यहाँ पर मैंने डिक्लेयर किया int a equals to 5. फंक्शन हमने डिक्लेयर किया INCR. इसमें आर्गुमेंट पास किया से x. आप आर्गुमेंट यहाँ पर चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज जस्ट प्रोटोटाइप. एक फंक्शन बनाया xincr. ये x इंक्रीमेंट फंक्शन, इंट पॉइंटर, ये हमारा IP पॉइंटर एक्सेप्ट कर रहा है. यहाँ पर भी आप पॉइंटर का नाम छोड़ सकते हैं. ठीक, इन फंक्शंस को हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं. इंट INCR इंट x. डेफिनेशन में क्या करना है, वी वांट टू मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ x, सो वी हैव इंक्रीमेंटेड द वैल्यू ऑफ x. आप प्लस प्लस x भी कर सकते हैं, x प्लस प्लस कर सकते हैं, डजंट मैटर. बल्कि हमें इसमें रिटर्न नहीं करवाना है, सो वी कैन स्पेसिफाई इट एज void. We don't want to return the value. Void. नीचे वाले फंक्शन को भी हम void कर देते हैं. So there's no confusion हमारी वैल्यू रिटर्न हुई है या नहीं रिटर्न हुई. So there's no need to return. कि हमने यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं करवाया. So void function. कॉपी कर लेते हैं. Control+C, Control+V. फंक्शन को डिफाइन करते हैं. यहाँ पर हमने क्या किया, स्टार IP. पहले हमने इसको डीरेफरेंस किया. ओके, स्टार IP विल गिव अस द वैल्यू एंड देन वी विल इंक्रीमेंट द वैल्यू. A equals to %D. A.
तो ये हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया फंक्शन की वैल्यू को। अब हम फंक्शन को कॉल करते हैं INCR को a वैल्यू के साथ कॉल किया and we'll again print the value of a, then we'll call INCR, यहाँ पर भी a आर्गुमेंट पास किया है and then again print the value of a and we will return 0. Okay. The program save and compile and run. You can see and the value of देखिए प्रोग्राम पॉइंटर के साथ प्रोग्राम लिखते ही देखिए क्रैश कर गया, ये कुछ ना कुछ गलती इसमें हुई है, इसका मतलब अच्छा इसमें वी नीड एड्रेस ऑफ द वेरिएबल नॉट वैल्यू, ठीक है, अदरवाइज दिस विल आल्सो बिकम कॉल बाय वैल्यू. सो नाउ दिस इज कॉल बाय एड्रेस. सेव एंड कंपाइल एंड रन. पहली बार में a की वैल्यू कितनी है 5 है. दिस इज यू कैन सी हियर this is before any function call, so since a was initialized at 5, so this is 5. Then after calling to INCR function, still the value of a is 5 because a has not been modified, only copy of a has been modified, so it doesn't affect value of a. Okay, so it is printed as a equals to 5. But when we are calling with the help of address of the a or call by address, then the original content or the actual parameter has been modified and it's being printed as 6. So you can see the effect of call by value and call by address. So whenever we want to modify our actual argument, we need to pass the argument by address. तो आर्गुमेंट पास आपको करना तब जरूरत पड़ती है जब आप एक्चुअल आर्गुमेंट को मॉडिफाई करना चाहते हैं. अगर आपको एक्चुअल आर्गुमेंट मॉडिफाई नहीं करना है, देन यू नीड नॉट पास आर्गुमेंट विद द हेल्प ऑफ एड्रेस. तो आपको जिस टाइप के आर्गुमेंट मॉडिफाई करना होता है उसी टाइप का आपको पॉइंटर यूज करना पड़ेगा. सिंस वी वांट टू मॉडिफाई एन इंटीजर, सो वी आर यूजिंग इंटीजर पॉइंटर. अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू किसी को मॉडिफाई करना हो तो आपको इन दैट केस विल नीड फ्लोटिंग पॉइंट पॉइंटर. और आपको अगर कोई यूजर डिफाइंड डेटा है, कोई आपको स्ट्रक्चर मॉडिफाई करना है, सो इन दैट केस यू विल नीड स्ट्रक्चर पॉइंटर. इज दैट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय एड्रेस. So today we have studied recursion. What the recursion is? Okay. So we have studied different functions to understand what the recursion is. आपने देखा कि recursion के लिए हमने factorial का भी example लिया, एक simple सा example. आप देख सकते हैं ये recursive definition है factorial की. अगर आप recursive देखें, ठीक है, और ये non recursive definition है factorial की. इस तरह से फिबोनाची के लिए एक आपने रिकर्सिव डेफिनेशन लिखी. अगर आप रिकर्सिव देखें तो बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है. अगर आप देखेंगे नॉन रिकर्सिव डेफिनेशन फिबोनाची की तो ये थोड़ी बड़ी डेफिनेशन होगी, 8-10 लाइन की आपके पास डेफिनेशन आएगी फिबोनाची सीरीज को लिखने की. तो रिकर्सिव डेफिनेशन लिखना आसान है, ऑल्दो एट द पार्ट ऑफ कंपाइलर इट इज मच हार्डर to comprehend Fibonacci, the recursive definitions of the functions, because when we call one function, then all the calculations are done and all the registers of the CPU are modified. But when we are calling another function, so compiler needs to pop up all these values and push them onto stack and then call another function. And since we are calling again and again and again, so there are many recursive calls, so we need many copies of the registers. So this is not very effective, but this is very useful and very easy. आप देख सकते हैं रिकर्सिव डेफिनेशंस लिखने में बहुत आसान है, समझने में बहुत आसान है, ऑल्दो इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से वो इतनी इफिशिएंट नहीं है जितनी आपकी नॉन रिकर्सिव डेफिनेशंस आपकी इफिशिएंट होंगी. So this we have studied today, and we have also studied about call by value and call by address. जो आप by value कॉल करते हैं फंक्शन को, तो एक्चुअल कंटेंट्स की वैल्यू जो है वो फॉर्मल आर्गुमेंट में कॉपी हो जाती है और एक्चुअल आर्गुमेंट अनअफेक्टेड रहते हैं. और आपको अगर एक्चुअल आर्गुमेंट मॉडिफाई करना होता है, देन वी पास द एड्रेस ऑफ द एक्चुअल आर्गुमेंट, जैसे कि यहाँ पर पास किया है, and with the help of pointer we can modify the actual content. Okay, तो आप देख सकते हैं ये आपका कॉल बाय वैल्यू है. इस फंक्शन में अगर आप मॉडिफाई करते हैं x, तो ओरिजिनल कंटेंट मॉडिफाई नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप बाय वैल्यू की जगह बाय एड्रेस पास करते हैं तो ओरिजिनल कंटेंट आपके मॉडिफाई हो जाते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट पास बाय वैल्यू एंड पास बाय
address, and this is end of our course. So I'm stopping here, and if you have any problem you can ask in our Google Classroom discussion. Okay, आप लोगों ने सभी ने अपना रोल नंबर और नेम वगैरह लिख दिया? ओके, ओके, तो आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं, एग्जिट कर दिए, सो दैट मीटिंग में बी एंडेड. इन्होंने नहीं लिखा अपना रोल नंबर या नेम, वो भी लिख दें. सभी ने लिख दिया. ओके.